Good morning, class. So today we will continue with exercise 7.3. We have to actually start it. I've explained you what is permutation. One more thing I want to tell you before starting it. Just see, permutation I told you the meaning. Combination I told you what is the meaning. Permutation is what? Arrangement. Combination is what? Arrangement, and this is combination is what? Selection. So any question if you have, you can do with permutation, maybe with combination. You have to, earlier also I told you, you have to think twice in the question what is being asked. Accordingly, you have to solve the question. So in this exercise, some questions, starting 2-3 questions, will do with permutation also, combination also, and fundamental principle of counting. With all the 3 methods we will do, so that things will be more clear to you. So keep this thing in mind. Nothing is there. Permutation means what? Arrangement. Combination means selection. One more thing I'm writing here. Keep this thing in mind. Like we were having NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial. This is the formula for permutation. Same way for combination, what we are having NCR. If we are having in a total of n items and we have to select r out of n items, in total we are having what? N items, and we have to select what? R items. So the formula is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Clear? Clear? Now if you want to change these formulas, NCR can also be written as how we can write this value n factorial upon n minus r factorial is what? NPR. So we'll write NPR divided by r factorial. Clear? So this way also you can write. So these 3 things keep in mind while doing the questions. Again, the same thing is if we are having n items and we have to select r items. Selection, I'm again and again telling you, selection of r items out of n items, then we will use C, combination. Arrangement of r items when n are given, then it is NPR, permutations. Clear? Now come to the first question of exercise 7.3. Now they are saying, please see your NCERT book. Everyone is having NCERT? Yes or no? Yes? Everyone is having? Yes, I want the answer. Or should I write the question? Everyone is showing the thumb. You can't tell me, you cannot speak, huh, Ganesh? Very good. So, exercise 7.3, question number 1 is, how many 3-digit numbers can be formed? So, what we have to do, we have to form 3-digit numbers. We have to form 3-digit numbers out of the digit 1 to 9. Out of the digits 1 to 9. हमारे पास digits कौन सी हैं? 1 to 9. Clear? 1 to 9 digits we are having. So we have to form a 3-digit number using the digits 1 to 9. So how can we form? One method is what? First method, fundamental principle of counting. 1, 2, 3. We are having 3 places. Now you only tell me this first place can be 3-digit number is there. Now just see if we were having digits from 0 to 9, then तब क्या होता? तब condition change हो जाती, because 0 we cannot have it here. तो एक condition लग जाती कि we cannot have 0 on the first place. As soon as you will have 0 on the first place, the number will be 2-digit number instead of a 3-digit number. पर हमारे पास वो तो condition है ही नहीं, तो वो हम बाद में लेंगे जब आएगा क्वेश्चन. ठीक है, अभी तो हमारे पास 1 to 9 digits हैं, तो क्या कर सकते हैं? Now what else they have said? No digits should be repeated. See the question, no digits should be repeated. अगर एक भी digit repeat नहीं होना चाहिए तो क्या होगा? First position can be filled by any of the 9 places. First position can be filled by any of the 9 places. Then second one by any of the 8. Then any of the 7. Is that clear? Is this clear? Yes. First place 9, then 8, and then 7. This is by fundamental principle of counting. Is it clear or not? Yes, Kelvin? Yes, ma'am. Okay. So your answer will be 7 into 8 into 9. That is equal to 7 8 the 56 into 9.
9 6 54 504. So your answer will be what? 504 by fundamental principle of counting. Now if I say ask you to apply the permutation. Permutation मतलब क्या होता है? Arrangement. अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? तीनों डिजिट्स को अरेंज ही तो कर रहे हैं. हम तीनों डिजिट्स को क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ टोटल हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? 9. परमुटेशन लगाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? तीन डिजिट्स को क्या कर रहे हैं? हम अरेंज कर रहे हैं ना. We are out of 9. We are arranging 3 digits. Arrangement of 3 digits is there. So arrangement of 3 digits in 9p3 ways. So it will be 9 factorial upon 9 minus 3 factorial. NPR क्या होता है? N factorial upon N minus R. So N minus R, 9 minus 3, 6 factorial. So it will be what? 9 factorial और 6 factorial हम कैसे लिख सकते हैं? कल पढ़ा था हमने. 6 factorial into 7 into 8 into 9 divided by 6 factorial. 9 factorial को लिख सकते हैं हम 6 factorial into 7 into 8 into 9. 6 factorial मतलब क्या? 1 to 6 multiplication of 1 to 6. Why we have done? Because in the denominator we are having 6 factorial. This will get cancelled. Your answer will be 7 into 8 into 9 is equal to 504. Clear है? ये तो आपका हो गया second method. ये आपका हो गया सेकेंड. ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड. क्लियर? ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड. ये तो अपन ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया. ये हमने परमुटेशन से किया. अब मैं कहूँ नहीं तो हमको, मैं तो बोल रही हूँ आप परमुटेशन से नहीं, इससे नहीं, कॉम्बिनेशन से करके बताओ. तो क्या करना है हमें? पहले तो हमें क्या करना है? 1 to 9 में से 3 डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा हमें? कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन सिलेक्शन. तो हम 1 to 9 में से सिर्फ 3 को सिलेक्ट कितने वेज में कर सकते हैं? हम सिलेक्ट कर सकते हैं 9C3 वेज में. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज सी. कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट? सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन में सिर्फ एंड सिर्फ सिलेक्शन पॉसिबल है. तो हम अगर 9C3 कर रहे हैं तो हमने क्या किया? 9 में से हमने सिर्फ 3 नंबर्स को हमने सिलेक्ट किया. अब वो 3 नंबर्स जो हमने सिलेक्ट किए वो जरूरी थोड़ी कोई भी किसी भी प्लेस पे आ सकता है. तो उनको अरेंज भी तो कर सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल वेज में. हम अरेंज कर सकते हैं ना. जैसे मैंने 3 नंबर सिलेक्ट किए, 3 डिजिट नंबर लेना है तो मैंने डिजिट सिलेक्ट कर लिए 1 2 एंड 5. मैंने 3 डिजिट सिलेक्ट कर लिए, है ना. एक प्रोसेस है. आप कितने तरीके से डिजिट सिलेक्ट कर सकते हो वो भी एक डिफरेंट प्रोसेस है. ठीक है, हमने कोई से भी 3 डिजिट. तो ये क्या दे रहा है आपको? 9C3 क्या दे रहा है? द नंबर ऑफ सिलेक्शंस पॉसिबल. 3 कोई भी डिजिट को सिलेक्ट करने के कितने पॉसिबल वेज हैं. तो आप 1 2 5 करो, 1 3 5 करो, 1 8 2 सॉरी 1 8 2 करो, 9 2 1 करो, कुछ भी करो. तो ये 9C3 आपको क्या देगा? 9C3 सिर्फ सिलेक्शन देगा, 3 नंबर्स का सिलेक्शन. पर अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, मैंने सिलेक्ट तो कर लिए, सपोज 1 3 5, जैसे मैंने यहाँ 1 2 5 सिलेक्ट किया है यहाँ पे. तो अब ये अरेंज भी तो हो सकते हैं आपस में. 1 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, 2 यहाँ भी. तो ये कितने वेज में रीअरेंज हो सकते हैं? या आपस में भी तो चेंज हो सकते हैं. दैट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज. नाउ जस्ट सी 9C3 कितना होगा? 9 फैक्टोरियल. इज इट विजिबल? आई थिंक सो. इट विल. पीयूष, व्हाई यू आर सो लेट? हाँ, 9C3 can be written as, wait, I'll write it here. This is 9C3 into 3 factorial, that is equal to 9 factorial upon 6 factorial into 3 factorial. Just see, 9CR, NCR is what? N factorial upon N minus R into R factorial. So 9 factorial upon 6 factorial into 3 factorial into 3 factorial. तो ये 3 factorial cancel. क्या हो गया? 9 factorial by 6 factorial. अभी हमने काउंट किया था, क्या था? 504. क्या है आंसर? 504. Is that clear? So when you will calculate it, this value will be 504. आप देख लो तीनों मेथड से हमने किया. So what you have to keep in mind, अब हमें हर क्वेश्चन को ऐसे 3 मेथड से नहीं करना है. We will do 2 to 3 questions so that the concept is clear to you. Clear? आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आना चाहिए. परमुटेशन मींस जब हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम अरेंजमेंट की बात करेंगे. अगर हम बोल रहे हैं कि सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम अलग तरीके से कर रहे हैं. हमने सिलेक्ट कर लिया 3 को सिलेक्ट करने के बाद हम 3 को रीअरेंज भी कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा सिलेक्ट एनी 3 मॉनिटर्स ऑफ योर क्लास एंड यू पीपल हैव सिलेक्टेड Manish, Himmak and Nishchal. Manish,
हिम्मत एंड निश्चल। तो अब इसमें तो हमें सिर्फ सिलेक्शन करना था। अब मैंने आगे क्वेश्चन में जोड़ दिया कि हाउ मेनी वेज वी कैन रीअरेंज देम, कि एक हमारे पास 3 रोज हैं क्लास में, कि ये पहले इस रो का हो सकता है, दूसरा दूसरे रो का हो सकता है, तीसरा तीसरे रो का मॉनिटर हो सकता है। नाउ अरेंजमेंट कैन बी डन। अब तीनों को हम कितने वेज में कर सकते हैं? मनीष, फर्स्ट रो का भी हो सकता है, सेकंड का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है। तो इन रीअरेंजमेंट को हम कितने वेज में कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में। वही किया हुआ है। तो कहीं तो आपको सिलेक्शन से करना है तो आप सिलेक्शन से करिए, जो मेथड आपको इजी लगे वो करिए, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल इन एवरी। एप्लीकेबल तो होगा बट द कैलकुलेशन पार्ट यू कैन सी 7 into 8 into 9। अगर मैं बोल देती 10 डिजिट नंबर है या 20 डिजिट नंबर है तो देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन कितना बड़ा आ जाता है, उसको लिखेंगे कैसे? पर इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिख के आंसर को छोड़ सकते हैं, उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हम जनरली क्वेश्चंस को परमुटेशन या कॉम्बिनेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बट देन आल्सो इफ यू फील कंफर्टेबल विद इट यू कैन डू दैट वे आल्सो। क्लियर? Whatever method I have given you, all the 3 methods you can do with any of the method. Is that clear everyone? The concept of fundamental principle of counting, permutation and combination. Is that clear? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Then come to the next question. Your next question is, how many 4-digit numbers are there with no digits repeated? Question number 2 is, how many 4-digit numbers are there with no repetition? With, I'm not writing the complete question, please. Repetition. With no repetition, मतलब repetition नहीं है हमारे पास, repetition नहीं है हमारे पास। अगर repetition, today what happens, some students are coming very late, 10:05 पे सुजल आ रही है। सुजल, what happened? हाँ, how many 4-digit numbers with no repetition is allowed? तो 4-digit number है, again हम बॉक्स बना लेते हैं। पहला हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देखो 4-digit नंबर बनाना है तो हमारे पास डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 to 9, ये डिजिट्स होते हैं ना। इन्होंने कुछ दिया नहीं है पर हमें तो पता है ना कि अगर हमें 4-digit नंबर बनाना है तो वी हैव व्हाट ऑल नंबर्स वी हैव 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विद द हेल्प ऑफ दीस 10 digits ओनली वी कैन फॉर्म अ नंबर। नाउ अब देखो कंडीशन आ गई थी, मैं लास्ट में बोल रही थी यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ कौन से डिजिट्स आ सकते हैं? 0 से 9 में 1 to 9 कोई भी आ सकता है, यहाँ 1 to 9 कोई भी आ सकता है। तो 1 to 9 को कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं हम? 9 वेज में। क्लियर? अब यहाँ कौन से आ सकते हैं? विद नो रिपीटेशन है, विद नो रिपीटेशन है तो यहाँ कौन से आ सकते हैं? कोई भी 10 आ सकते हैं, बट एक तो यहाँ आ चुका ना ऑलरेडी, एक तो हमारा यहाँ आ चुका ना, तो क्या होंगे? कोई भी 9 आएंगे यहाँ पे भी। क्लियर? अब यहाँ कितने आ सकते हैं? यहाँ जो 2 आ गए वो नहीं आएंगे, 8 आ गए। यहाँ क्या आएगा? 7। This clear? The fundamental principle of counting. Why we have done this? First हमने इसको क्यों फिल किया? क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आ सकता तो हम 0 को एलिमिनेट करेंगे तो डिजिट्स क्या बचे? 1 to 9। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास डिजिट्स क्या बचे? 1 to 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है अबाउट 9। तो 9 में से एनी ऑफ द 9 डिजिट्स कैन कम। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई भी आ सकता है। तो 9 ये एक प्लेस हम 9 वेज में फिल कर सकते हैं। तो इसको हम कितने वेज में? 9 वेज में फिल कर सकते हैं। इसको अगेन हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं? The one digit which has come already come here will not come here. जो एक बार यहाँ आ चुका है वो यहाँ तो नहीं आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। तो टोटल 10 डिजिट्स हैं, कोई भी 9 आ सकते हैं, जो यहाँ आ गया वो नहीं आएगा बस। ठीक, अब ये दो जो प्लेसेस फिल हो चुकी हैं वो दोनों यहाँ नहीं आ सकते थर्ड प्लेस पे, तो क्या हो गए? 8 हो गए। 8 ways, 9 ways, 7 ways. Now answer will be what? Answer will be 9 into 9 into 8 into 7. Now when you will multiply 9 into 9 into 8 into 7, you will get the answer 4 5 3 6. Multiply it, you will get this answer only. Clear? 81 into 56 करके देख लो, 81 into 56 यही आपका आंसर आएगा। क्लियर? अब आप अपन आ जाते हैं, ये तो हमने किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया हमने, एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आप इसको
आप अगर इसको करो परमुटेशन से, परमुटेशन से कैसे करेंगे? अगेन आप आ जाओ इधर ही, मैं वापस से ले लेती हूँ 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है ना, 4 प्लेसेस हैं। अब हम ये वाली प्लेस का अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है, और ये 3 को अलग ले लो, हमने इन 3 को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, ठीक है, हमने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा था, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, तो अब मेरे पास ये क्या है, 3 प्लेसेस हैं, और इनके लिए डिजिट्स क्या है मेरे पास, यहाँ जो आ गया वो नहीं आ सकता, बाकी कोई भी आ सकता है ना, यहाँ जो हमारा आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, बाकी कोई भी आ सकता है। तो यहाँ टोटल डिजिट्स क्या है, यहाँ फर्स्ट इसको फिल करना चाहें तो आप कितने वेज में कर सकते हो, ये वाली प्लेस को कितने वेज में, एनीवन हु कैन टेल, फर्स्ट प्लेस को आप कितने वेज में ले सकते हो, 9 वेज में ले सकते हैं ना, 9, वेरी गुड। तो 9 वेज को हम कैसे सिलेक्ट वो कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, 9p1 कर सकते हैं ना, 9p1, 9 एलिमेंट्स आर देयर, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं, बाकी क्वेश्चन को भूल जाओ, हमारे पास सिर्फ ये एक बॉक्स है ना, ये कितने वेज में हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, कितने वेज में, 0 हम नहीं ले सकते, ठीक है, हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने 10 है, बट वी कैन नॉट टेक 0 हम ले नहीं सकते, तो हमारे पास टोटल डिजिट्स बचे 9, 9 में से हमें कितने लेने हैं, 1, तो ये कितने पॉसिबल वेज है, 9p1, तो ये हो जाएगा आपका 9p1 वेज में मल्टीप्लाइड बाय, अब ये कितने हैं, 3 प्लेसेस हैं, 3 रीअरेंजमेंट्स हैं, कितने कितने वेज में पॉसिबल, 3 अरेंजमेंट्स out of, again digits are what, 9 only, because the one digit has been used here, so total 10 नहीं बचे, अब हमें पास वापस 9 बचे, तो 9p 3 ways, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 9p1 is what, 9 factorial upon 9 minus 1 is 8 factorial into 9 factorial upon 9 minus 3 is 6 factorial, सॉल्व करो इसको, this will be equal to 9 factorial upon 8 factorial, इसको अपन लिख सकते हैं 9 factorial को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 factorial into 9, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैसे लिख सकते हैं, 9 factorial अभी अपन ने सॉल्व किया था, 6 factorial into 7 into 8 into 9 लिख सकते हैं ना, तो टोटल क्या हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 into 7 into ये 6 कैंसिल हुआ, 8 into 9, देख लो 9 into 9 into 8 into 7 आ गया वापस, सॉरी हाँ 9 into 9 into 8 into 7 आ गया ना, वही चीज आ गई, 9 into 9 into 8 into 7, क्लियर, सो दिस इज विद परमुटेशन। अब मैं यही क्वेश्चन बोलूं कि आप कॉम्बिनेशन से करो, जस्ट सी कॉम्बिनेशन से कैसे होगा, अगेन वी आर हैविंग 4 प्लेसेस, पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन, अब अगेन सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास कंडीशन आ रही है कि यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो दिस प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, फर्स्ट सिलेक्शन कितने वेज में पॉसिबल है, 9c1, 9c1 वेज में, है ना, पहला सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है, कोई भी 9 में से एक आ जाएगा, अब जो 9 में से यहाँ आ गए तो वो यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या सिलेक्शन बचा, 9 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, अब यहाँ है, अब हम 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करते थे, अरेंजमेंट ऑफ 4 डिजिट्स मींस 4 फैक्टोरियल वेज, नहीं 4 फैक्टोरियल से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दिस प्लेस इज फिक्स्ड, ये प्लेस तो फिक्स्ड है किसी एक नंबर से, क्लियर, इसको तो हमने 9c1 से एक सिलेक्शन फिक्स कर लिया, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता, अगर हम इंटू 4 फैक्टोरियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 भी आ जाएगा, ठीक है, तो वो 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, 4 डिजिट नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन 3 को रीअरेंज करेंगे इन 3 फैक्टोरियल बेस, नाउ यू जस्ट सी, ओपन द ब्रैकेट, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 minus 1 is 8 factorial into 1 factorial into 9 factorial upon 6 factorial into 3 factorial, 9 minus 3 is 6 factorial into 3 factorial multiplied by 3 factorial, ये 3 factorial cancel, ये चीज तो अभी अपन ने सॉल्व की थी, तो क्या आया था, वही आया था 9 into 9 into 8 into 7, is that clear? So this is with the help of selection we have done. This is with the help of selection we have done. So either when you are using this, the formula will change. When you are using permutation, the formula will change. When you are using fundamental principle of counting, you are doing it directly.
by putting the arrangements, what all arrangements are possible for what all places. That's it. Clear? So now come to question number 3. It's very easy. Please practice it a lot. Permutation is not very difficult, but the level of questions can be very difficult. Clear? We can make the questions, the level of the questions very difficult also in this topic. So if you will practice, things will be more clear to you. Now your question number 3 is what we are having. If we are having how many 3-digit even number can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7. How many 3-digit even numbers? 3-digit even numbers. Even numbers can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 6, 7. तो कितने 3-digit नंबर हम बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 6, 7. तो अब वापस हमारे पास कंडीशन है. पहले हमारे पास कंडीशन थी फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता. अब हमारे पास क्या कंडीशन है? इवन नंबर बनाना है. तो लास्ट डिजिट शुड बी व्हाट? इवन. लास्ट डिजिट शुड बी एन इवन नंबर. अगेन 3-digit number. Make 3 boxes. How many even digits are there? 2, 4 and 6. 3 even digits है हमारे पास. 2, 4, 6. अब ये 2, 4, 6 कितने वेज में, ये प्लेस कितने वेज में फिल हो सकती है? यस एनीवन? इसके कितने पॉसिबल वेज हैं? 3 पॉसिबल वेज. वेरी गुड. फिर इसके पास कितने पॉसिबल वेज हैं? अब यहाँ जो नंबर एक नंबर ही आएगा ना, 3 तो नहीं आएंगे. कोई भी एक नंबर जो यहाँ आ गया, आइदर 2 और 4 और 6. तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5. Total we are having 6 digits. So out of 6, 1 has come here. So 5 will come here. 4 will come here. Why? Because again in the question repetition is not allowed. If repetition is allowed, condition change हो जाएगी. याद है ना? Repetition allowed होता है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 आ जाएंगे आपके, है ना? पर repetition allowed नहीं है. तो आंसर क्या हो गया? आंसर will be equal to 4 5 are 20 into 3 60. आंसर आपका आ गया 60. अब इसको आप बताइए P परमुटेशन से कैसे करेंगे? एनी वन ऑफ यू? यस. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन. कैसे फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन? एनी वन? टोटल कितने हैं हमारे पास इवन नंबर्स? ये प्लेस किसमें? 6p3 ways. हाँ 6p3 ways. नो 6p3 तो फिर टोटल 6 में से हम कोई से भी 3 सिलेक्ट कर सकते हैं ना. 6p3 अगर अब आप कहते हो 6p3 का मतलब क्या है? हम कोई भी 3 डिजिट सिलेक्ट कर सकते हैं 6 में से. तो इन 6 में से हम कोई भी 3, हमें 3 तो लेने ही नहीं है हमें. मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन है. अगर मैं जनरली बोलते 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आपका सही होता 6p3, कोई से भी 6 में से 3 ले लो. पर हमारे पास क्या है? कंडीशन है. कंडीशन क्या है? कि 2, 4 और 6 में से कोई एक नंबर यहाँ आएगा. इवन नंबर चाहिए ना हमें, तो we want even number. So this place can be, for this we are having total digits. How many we are having? 2, 4 और 6. 3 digits है हमारे पास टोटल इवन. उनमें से हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? P. We can select only one. So this place can be filled in 3p1 ways. ये कितने वेज में हो सकती है? 3p1. अब जो नंबर यहाँ आ गया वो इधर नहीं आ सकता, तो बाकी बचे कितने? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स बचे. 5 में से हम कितने सिलेक्ट करेंगे? अब हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? सिर्फ 2 नंबर्स. अब कोई से भी 2 हो सकते हैं. रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पर कोई से भी 2 हो सकते हैं. तो ये हो गया 5p2. तो क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 minus 1, 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 2 is 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. क्लियर? अब ऑलरेडी अरेंजमेंट है, हम अरेंजमेंट पे नहीं जाएंगे क्योंकि परमुटेशन इज, वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट ओनली. क्लियर? तो अब आपका क्या आ गया? यहाँ सॉल्व कर लो. दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. क्या होगा? इसको अपन लिख सकते हैं ना 2 फैक्टोरियल into 3, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3. तो ये कैंसिल, क्या बचा? इधर से तो बचा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल into 4 into 5. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल. ये बचा 4 into 5
है ना? इज दैट क्लियर? सॉरी, ये 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा? किसी ने बोला भी नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या आएगा? Just see 3 factorial upon 3 minus 1 is 2 factorial. 5 factorial upon 5 minus 2 is 3 factorial. मैंने यहाँ पे c का फॉर्मूला लगा दिया था p की जगह, ठीक है? 5 factorial upon 3 factorial. अब ये क्या हो गया? 3 factorial by 2 factorial की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि 3 factorial को हम क्या लिख सकते हैं? 2 factorial into 3. तो 2 factorial cancel, only 3 will be left. Now solve this. 5 factorial by 3 factorial. 5 factorial upon 3 factorial. अब 5 factorial को हम क्या लिख सकते हैं? 3 factorial into 4 into 5. तो बचा क्या? 4 into 5. आंसर क्या है? 3 into 4 into 5, 60 only. Is that clear? Same way combination से हम कैसे करेंगे? ये आपकी 3 places है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इसको डब कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे? दिस प्लेस इवन बनाना है. दिस प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन आउट ऑफ 3 वी कैन सिलेक्ट वन, एनी वन, 2, 4, 6 में से 3 में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लिया. फिर यहाँ के लिए हमारे पास अगेन क्या है? 5 में से हमने कोई से भी जो 5 बचेगी, एक ही तो आएगा यहाँ पे, 3 के 3 तो नहीं आ जाएंगे, तो जो भी बच जाएंगे वो भी आ सकते हैं ना यहाँ पे. तो 5 में से हमने 2 सिलेक्शन किए. अब ये तो सिलेक्शन है, ओनली सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन गिव्स ओनली सिलेक्शन. नाउ दे कैन बी रीअरेंज्ड. कितने वेज में रीअरेंज हो सकते हैं ये बताइए? देखो इधर, they can be arranged, they can be rearranged in how many ways? अब ये देखो, ये तो फिक्स है ना हमारा, कोई भी एक इवन नंबर आएगा, इसको नहीं कर सकते. अभी हम अगेन रीअरेंजमेंट सिर्फ इन दोनों में पॉसिबल है. तो इनटू 2 फैक्टोरियल. नाउ जस्ट सॉल्व इट. 3 फैक्टोरियल बाय 3 minus 1 is 2 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल बाय 5 minus 2 is 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया है into 2 फैक्टोरियल. ये कैंसिल. अब आंसर देख लो, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. सेम आंसर आपका आएगा 60. सेम आंसर you will get as 60. Is that clear? Yes, is it clear everyone? Yes. Okay then, thank you class. It's time.